Good morning, students. How are you? We are studying constitutional design and previous topic we have studied about a new South Africa. In this video, we shall study about South African Constitution, a compromise formula. Compromise formula means to find a way to settle problems to satisfy all parties. You know that in South Africa at the time of independence there was three type of people: whites, blacks and colors. White people means the ruler before independence, those come from European countries. Blacks are native of South Africa, and colors, mixed people, those came from other countries to South Africa except Europe. The South African Constitution was developed as a compromise formula between the oppressors and oppressed. Oppressor means दमन करता, यानी साउथ अफ्रीका के इंडिपेंडेंट होने के पहले जो भी सरकार व्हाइट्स की थी वहां पर, वह ऑपरेसर थी, यानी दमनकारी सरकार थी. एंड ऑपरेस्ड मीन्स द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, दोज वेयर bad treated by the colonial government. In the new democratic setup that the new constitution wanted to establish, both the group were planning to live as equal, means white people and black people live together as equal. All these things are given in the constitution of South Africa. It was not easy for either group to trust each other. यह आसान नहीं था कि व्हाइट्स ब्लैक का बिलीव करें या ब्लैक व्हाइट्स का बिलीव करें. They had their own apprehensions, means happening something bad, due to the fear of happening something bad in future. भविष्य में कुछ गलत न हो जाए, यह भय दोनों लोगों को था, चाहे व्हाइट्स हो या ब्लैक्स हो. तो इसको दूर करने के लिए कुछ चीजें बताई गई, जैसे each group wanted to safeguard its own interest. प्रत्येक ग्रुप अपने चाहत के अनुसार अपनी सुरक्षा चाहता था. The black majority wanted to ensure that democratic principle of majority rule should not be compromised under any circumstances. और जो ब्लैक मेजॉरिटी थी वह चाहती थी कि किसी भी तरह से जो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का मेजॉरिटी रूल है, किसी भी परिस्थिति में इससे समझौता न किया जाए. दे आल्सो वांटेड सब्सटेंशियल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट. वे अपने जीवन यापन के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए और अपनी राजनीतिक अधिकारों के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध थे. द white majority was keen to protect its own privilege and property. Privilege means special
facility, those are given by the royal to a few person. Those are very important in the state. Minority people means white people चाहते थे कि हमें जो विशेषाधिकार मिला है, जो सुविधाएं मिली हैं, विशेष सुविधाएं मिली हैं और हमारी प्रॉपर्टी जो है इसकी सुरक्षा हो, यानी यह किसी तरह से किसी धोखे में न रहे। After long negotiation, both parties agreed to a compromise in the following manner. एक लंबे डिस्कशन के बाद, आपसी बातचीत के बाद, दोनों पार्टी व्हाइट्स एंड ब्लैक्स एक समाधान निकाले दोनों लोग और इस समझौते पर आए। क्या था वो समझौता? The whites agreed to a policy of majority rule and principle of one man, one vote. They also agreed to accept the basic rights for poor and the workers. Whites जो थे वह मेजॉरिटी रूल का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, उस पर सहमत हुए कि एक व्यक्ति एक वोट दे सकता है और इस बात पर भी सहमत हो गए जो गरीबों का मुख्य अधिकार था, गरीबों और कर्मकारों का, कार्य करने वालों का, मजदूरों का जो भी अधिकार दिया गया उससे सहमत हो गए। कौन सहमत हुआ? व्हाइट्स। अब ब्लैक्स किस पर एग्रीड हुए, इसको देखिए। द ब्लैक्स एग्रीड that the majority rule would not be absolute and also agreed that the majority would not take away the property of the white minority. White people सहमत हो गए कि जो मेजॉरिटी रूल है वो ठीक है, एक व्यक्ति एक वोट दे सकता है और जो गरीबों मजदूरों का अधिकार है उसको स्वीकार कर लिए। और जो ब्लैक्स थे उन्होंने यह सहमति जताई कि किसी भी दशा में जो मेजॉरिटी रूल है वह व्हाइट्स की कोई भी प्रॉपर्टी, यानी जो माइनॉरिटी में व्हाइट्स हैं उनकी किसी भी प्रॉपर्टी को भविष्य में नहीं लिया जाएगा। भले ही मेजॉरिटी रूल हो, ब्लैक्स मेजॉरिटी में हो, लेकिन माइनॉरिटी मीन्स व्हाइट पीपल का जो भी प्रॉपर्टी है उसको भविष्य में कभी भी लिया नहीं जाएगा। दिस कंप्रोमाइज वाज नॉट वेरी इजी टू बी अचीव्ड। ये जो बीच का रास्ता निकाला गया इसको प्राप्त करना आसान नहीं था। The most difficult task was the implementation of this compromise and the building up of trust on each other. सबसे बड़ी कठिनाई इसमें थी कि इस कंप्रोमाइज कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे लागू किया जाए और एक दूसरे में किस तरह से विश्वास पैदा किया जाए। The only answer of this problem was to write down the rule of the game that everyone could abide by. तो इसका आंसर, इस प्रॉब्लम का आंसर कैसे लोगों के बीच में, एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट हो, यानी ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में विश्वास जागे एक दूसरे के प्रति, इस प्रॉब्लम का आंसर एक रिटेन रूल और रेगुलेशन तैयार किया गया जो सबको मान्य हो। द रूल वेयर टू बी सुप्रीम, इस रूल को सबसे ऊपरी रूल यानी अधिक शक्तिशाली रूल माना गया।
which abide by everyone, no government could ignore। एक ऐसा रूल्स रेगुलेशंस बनाया गया जो सर्वोपरि माना गया, जिसका पालन सभी जनता यानी सभी पब्लिक करेगी और सरकार भी उसको मना नहीं कर सकती। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह का जो एक कलेक्शन था रूल्स का, उसको क्या कहा गया? कॉन्स्टिट्यूशन। The most difficult task was the implementation of this compromise and the building of trust on each other। ये जो कंप्रोमाइज रूल्स रेगुलेशन थे, इसका पालन करवाना बड़ा कठिन था, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर यानी ब्लैक्स व्हाइट्स के ऊपर, व्हाइट्स ब्लैक के ऊपर विश्वास कैसे करेंगे, इसको लेकर के इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस रूल्स और रेगुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन बड़ा कठिन था। The rules were to be supreme, which abide by everyone and no। It means जो रूल्स होता है, रेगुलेशन रूल्स जो बनाए जाते हैं, यह सर्वोपरि होता है, और यह सर्वोपरि तभी होगा जब वह सबके द्वारा मान्य हो, यानी all citizens follow that rule and no government could ignore। यानी गवर्नमेंट जो है वह भी उसकी मनाही न कर सके और पूरी पब्लिक उस कानून को मानता है, तो वही क्या होता है? सुप्रीम लॉ होता है, सुप्रीम रूल होता है। और यही सुप्रीम रूल जब एक सेट के रूप में लिखकर रख दिया जाता है, तो वही कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। This set of basic rule is called a constitution। These rules determine the following। ये जो रूल्स और रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए जाते हैं, वह कुछ आगे बातें बताई गई हैं, उन सबको निश्चित करता है, डिटरमाइन करता है। जैसे फर्स्ट है, व्हाट विल बी द structure of the elected government। मीन्स इलेक्टेड गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या बनावट होगी, कैसे हेड होगा, मिनिस्टर्स कैसे होंगे, कितने होंगे। इस तरह से गवर्नमेंट का, इलेक्टेड गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर डिटरमाइन होता है कॉन्स्टिट्यूशन से। What the elected government are empowered to do and what they are not। In the constitution, all the powers of the government and its organ given, and what are the limitations of the government and other three form of the three organs of the government। Three organs of the government means legislatures, executive and judiciary। In this way, constitution empowered the elected government and its organ, and also it lays limitations of their power, like a boundary। It means what thing the government can done and what thing cannot done। In this way, constitution provide a set of empower of the government and also as well as limitations। Next, the
rights and duties of the citizen. In Constitution, a number of rules, regulation lays about the rights and duties of the citizen. संविधान के द्वारा नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की सीमाएं भी दी जाती हैं। नागरिकों के क्या क्या अधिकार हैं और उनके क्या कर्तव्य हैं देश के प्रति, इन सब का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में निश्चित होता है। नेक्स्ट, चेंजिंग दीज रूल्स शुड नॉट बी वेरी इजी, दैट इज प्रेस्क्राइब फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर। जो ये रूल्स दिए गए हैं सब, इन सबको बदलना आसान नहीं होता, बल्कि इसमें अमेंडमेंट करने की सलाह दी गई है और उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसकी किस प्रक्रिया से किसी कानून को बदला जा सकता है या संशोधन किया जा सकता है या नए कानून लाए जा सकते हैं। जो पुराने कानून हैं उनमें अमेंडमेंट करना यानी संशोधन करना एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, उसके तहत एक प्रक्रिया की जाती है। जस्ट लाइक साउथ अफ्रीका, almost in every country of the world, there has been diverse social groups having differences of opinion and interest. ठीक इसी तरह से जिस तरह से साउथ अफ्रीका में है, विश्व के तमाम देशों में ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक ग्रुप हैं जिनके विचार और जिनकी चाहत अलग अलग होती है। In brief, the Constitution can be described as a set of written rules having the acceptance of the people living together in the country. इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें डिस्क्रिप्शन होता है, वर्णन होता है, जिसमें कानून को सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, जो आपस में साथ साथ रहते हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को एक साथ रहने की प्रेरणा भी देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सुप्रीम लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सुप्रीम लॉ also determines the relationship among the people living in the country. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको हम सर्वोपरि कानून कहते हैं, वह निश्चित करता है लोगों के बीच में किस तरह का संबंध रहे, सिटीजन के बीच में किस तरह से आपस में लोग संबंध बनाएं, एंड आल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, और एक सरकार तथा वहां के नागरिकों के बीच में किस तरह से संबंध होना चाहिए। यह सब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, उसके द्वारा तमाम चीजें दी जाती हैं, तमाम रूल्स रेगुलेशंस दिए जाते हैं, जिससे कि जनता के बीच में किस तरह से संबंध होना चाहिए और सरकार और जनता के बीच में किस तरह से संबंध होना चाहिए। इन सब विषय में विस्तृत जानकारी, विस्तृत नियम और कानून सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए जाते हैं। थैंक यू।